Hey guys, good afternoon to all. So before starting my video, I want to say to all of you three things which is very important to you all. And I am very disappointed from that. That is that you are not sharing my videos. And second thing, that in the previous video I have given a homework to you all, but no one tried to do it. And third is that you are not putting any question to me also. That how this is done, that how that question I have done, which is best part in the video, which is bad part in the video. You are not telling, guys. 15 subscribers are there, but I don't think I can say that only 2 or 3 subscribers are there who are watching my all the videos. And they 2 or 3 subscribers watching the videos completely, not only starting सिर्फ देखा 10 मिनट देखा या 5 सेकंड देखा बस हो गया. ऐसा नहीं कर रहे कोई भी. सो गाइज, मैं दोबारा बोल रही हूँ बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो, प्लीज़ subscribe my channel, hit the bell icon button so that you can get all the new notifications of my video, of my channel. Subscribe it, hit the bell icon button, like it, share it, and also comment it. Please share the video. It's for all in our country. Many children are there who can't study even. And many are there who don't know what is maths. But their age is to be in 10th, to be in 11th, to be in 9th. Not 11th, but to be in 9th, to be in 8th, to be in 10th. So these are 3 things which I want to discuss from you all, friends. Let's start the video. Exercise 1.4. So here I want to understand you all that what is irrational and what is rational, what is terminating decimal expansion, what is non-terminating repeating decimal expansion. Okay. So terminating, rational. First of all, I will understand you all what is rational and what is irrational. So rational, if I am talking about rational, so rational are those numbers which form P upon Q. Numbers which form P upon Q form are known as rational numbers. And the next thing is, what is irrational? Irrational number which do not form P upon Q form are known as irrational number. Okay, irrational number यानी कि जो P upon Q वाली फॉर्म कर दे, यानी कि वो तो हो जाएंगे irrational. जो फॉर्म नहीं करते हैं P upon Q की फॉर्म, जो नहीं करते उन्हें हम क्या बोलेंगे? इरेशनल. ठीक है. दूसरी चीज़ एग्जाम्पल.
सेकेंड एग्जाम्पल मैं देती हूँ इसका. आई कैन टेक 11. So what is this? This is rational number because it is forming P upon Q. और आपको पता है कि जो भी P अपॉन Q की फॉर्म करता है, जो बनाता है P अपॉन Q की फॉर्म, उसे उन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स. ठीक है. अब मैं ले लेती हूँ इरेशनल का. तो आई कैन टेक, तो 12/3 इज इक्वल्स टू 4. ये एग्जाम्पल है इसका. यानी कि ये क्या है, अब ये इरेशनल है. क्यों इरेशनल है? क्योंकि इसने कौन सी फॉर्म नहीं करी, P अपॉन Q की. इसने कर दी तो ये है, इसने नहीं करी तो ये नहीं है. रैशनल नहीं है ये, पर इरेशनल है. ओके. सो नाउ द क्वेश्चन बिगिंस. अब मैं बोलती हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे जो 1.4 है जब मैं शुरू करवाऊँगी उससे पहले मैं आपको चीज़ बोलना चाहती हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं. देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि वो डेसिमल एक्सपेंशन, मैं आपको बता ही देती हूँ लिखकर, वैसे आपको समझ नहीं आएगा. टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. अब टर्मिनेट कौन सा नंबर है? अब यहाँ पर एक चीज़ बताना चाह रही हूँ. यहाँ पे देखो, या तो आपके पास जब आप करोगे ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपको मैं बोल देती हूँ ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, अब इसको हम चेंज करेंगे, इन दोनों की क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन निकालेंगे. फैक्टराइजेशन निकल के आ जाएगा 4/². इसका क्या आ जाएगा 5/². तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, P अपॉन Q की. ये टर्मिनेट नहीं हो सकते, है ना, आगे जाके टर्मिनेट नहीं हो सकते. ये क्या है, ये आगे जाकर कुछ नहीं होंगे, इसको हम दोबारा उसे अपनी फॉर्म में आ जाएंगे, है ना. कट नहीं हो सकते अब ये, और कुछ नहीं आ सकता. क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो जब भी डिनोमिनेटर में आपका 5 या 2 आ जाए, या तो ऐसे आ जाएगा या इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा. या तो ऐसे हो जाएगा, ये 5 आ गया, ठीक है, या तो आपका 2 आ जाएगा नीचे, कोई भी पावर हो सकती है. ठीक है. तो आपको क्या हो जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा टर्मिनेटिंग है. या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो आपका टर्मिनेटिंग है. पर अगर ये दोनों नहीं आते तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है. आप नॉन टर्मिनेटिंग में चलते हैं. अब यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है. यहाँ हो सकता है 6, 8, 9, 10. ठीक है, यहाँ पे नीचे कुछ भी नंबर हो सकता है. तो जब 2 और 5 नहीं है, ये 2 × 5 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग मैंने बताया भी था कि ये क्या होते हैं, ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं. और ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं, सॉरी, ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स होते हैं. और ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है. तो यहीं पर सेम हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर यानी कि जो P अपॉन Q की फॉर्म ना करे उसे हमें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर. यानी कि अब आपके सामने आ जाता है ठीक है. आप क्या करोगे, अब इसे क्या करोगे, लिखोगे कैसे, इनटू आएगा. तो अब आपने ऐसे लिख दिया 2 5 10 और 5 10 × 3 30 और ये 7. तो ये क्या है, ये इरेशनल है. क्यों इरेशनल है, क्योंकि यहाँ पर 7 है और ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा. P अपॉन Q की बात नहीं कर रहे अभी हम यहाँ पर. अभी हम कर रहे हैं कि जो 2 और 5n, 2n या तो 5n, इन दोनों में से कोई आ जाता है तो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं आता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है. तो समझ आ ही चुकी होगी बात. अब चलो नेक्स्ट चलते हैं. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4.
अच्छा, अब विदाउट एक्चुअली performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। तो जैसे कि आपने देखा ही है, अगर मैं आपको इसमें एग्जांपल भी दिखाती हूँ तो आप देख सकते हो 2n और 5m दिखना चाहिए ना। तो मैं आपको दिखाती थी सीधा 1.5 की रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, ये ऐसे नंबर दे रखे हैं, पर अभी हमारे पास ऐसे नंबर नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये ऐसे कर दिया, इसकी फॉर्म चेंज करी और ये फॉर्म कर दिया, इसकी फॉर्म चेंज करी, ये करके ये कर गया, बन गया। ठीक है, ये सारे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, ये बन गया। फिर ये इसको चेंज करी, ये बन गया। ठीक है, तो ये क्या था अभी हमारा, ये था हमारे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, यानी कि टर्मिनेटिंग के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में बात करें। अब नीचे चलते हैं, नीचे है एज वन वुड एक्सपेक्ट दे कैन कॉल ऑल बी एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर्स हुज डिनोमिनेटर्स आर पावर ऑफ 10। Let us try and cancel the common factors between the numerator and the denominator and see what we get। अच्छा, अब ये इतनी सारी इंग्लिश बोल गया, मैं समझा भी देती हूँ इस इंग्लिश को क्या बोला ये, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि अब हम एक्सप्रेस करते हैं रैशनल नंबर्स को डिनोमिनेटर में आर पावर्स ऑफ 10। ये तो अभी हमारी इसकी पावर्स है कि 10। लेट अस ट्राई एंड कैंसल द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, ट्राई करेंगे कैंसिल हो जाए कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये क्या था 10 इंटू 3, अब इसको भी तोड़ दिया, यानी कि इसको जब तोड़ा, कुछ भी हो ऐसी फॉर्म दे रखी है आपको, इसने तोड़ दिया, इसने इसको भी तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, तोड़ के क्या बन गया ये 3 इंटू 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 क्या बन गया, ये क्या है ये, और सभी को बताइए टर्मिनेटिंग नंबर्स है। जी हाँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। ठीक है, अब मुझे लगता है समझ आ गया होगा मेरे पहले वाले समझाने की, यानी कि 2n यानी कि 5m 2n इंटू 5m में से या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, या तो पूरा ये एक साथ होना चाहिए, वो हम टर्मिनेट मान लेंगे उसे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नाउ 0.1104 ओके इज इक्वल्स टू 104 अपॉन में 10 की पावर 3। अब इसको भी तोड़ दिया दोबारा, इसको भी तोड़ गया। ठीक है, 2 5 से 10 और 2 की पावर 3 आ गई, मतलब यहाँ पर 13 इंटू 2 हो गया। ठीक है, आपकी ये आ गया, सॉल्व हो गया ना सॉल्व। अब ये यहाँ पे आके ये बन गया, जिसकी पावर नहीं होती है ना उसे यहाँ लिख देते हैं, ये तो क्रॉस हो ही जाएंगे, ये कट गए ना। देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ये हमारा 2 कैसे बचा, देखो इन्होंने सबसे पहले किया, आपका ये दे रखा है 0.375। ठीक है, इसको इन्होंने तोड़ा तो क्या आया इनका 375 अपॉन में 10 की पावर 3। अब इसको तोड़ा है इन्होंने 3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 की पावर 3। कैसे आया है ये, और ये कट हो गया, क्या बच गया, ये बच गया आपके पास, लिख दिया आपने आंसर, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, ऐसे किया इन्होंने, ये तो था फर्स्ट। अब मैं दूसरा दिखा देती हूँ, 0.0875। ठीक है, अब 875 अपॉन में 10 की पावर 4 कैसे आई है, ये 1 2 3 4। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इसको भी तोड़ दिया, इसको कैसे तोड़ा, क्या आ जाएगा 7 अपॉन में 8 की पावर 2 की पावर 4 इंटू 5। तो देखो अब ये इन्होंने कैसे किया है, सॉरी गाइस फॉर इंटरप्टिंग और फॉर स्टॉपिंग द वीडियो इन बिटवीन, सॉरी। अब चलो अब कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे देखो 0.0875 था, 875 को 10 अपॉन 4 कर दिया, इसको जब तोड़ा तो 5 की पावर 4 इंटू 7 अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 आपको पता ही यहाँ पे 4 देकर तब तोड़ेंगे तब भी 4 रहेगा।
ठीक है, पर 10 नहीं आएगी, 10 आ जाएगा इंटू करके, पर पावर 4 रहेगी। सेम आ जाएगा जैसे हमें मिला था। इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 4 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 7/24, 2 की पावर 4। कैसे, क्योंकि ये और ये कट हो गया तो आपका ये आ गया। थर्ड ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं हम। ठीक है, अब हम एक और ले रहे हैं इसको, तो हम ले लेते हैं 2333408। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2333408 अपॉन में 10। ठीक है, ओके। सो ये 10 की पावर 4, क्यों 4 यहाँ पे पता ही है, 4 इधर रखें। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप क्या करेंगे, 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 7 से 28, 28 इंटू 5 21, तो आपका आ जाएगा 2333408 अपॉन में 5 की पावर 4। ये मैं डायरेक्ट आंसर ले आई हूँ। इसे सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे, 2 इंटू 5 इंटू 4 लिखोगे ना, तो कट जाएगा, वो ऑलरेडी कट ही जाएगा, आराम से कट जाएगा, क्योंकि इसकी पावर है ही 4, पर मैंने आंसर डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर लेना। प्रॉब्लम आती है, पूछो मेरे से, अगर आप लोग पूछोगे तो मुझे खुशी होगी। ओके, नेक्स्ट। तो इसी तरीके से अब हमें अपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी करना है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है, हमें उसको बिना करे ही दिखाना है कि ये टर्मिनेटिंग है या ये टर्मिनेटिंग है या ये नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉट इरेशनल मीन्स सेम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 है ये। हाँ, तो इसका फर्स्ट पार्ट है अब आपका 13/3125, यानी कि 13/5 की पावर 4। क्या है ये, टर्मिनेटिंग है। ये सिंपल लिख दो, टर्मिनेटिंग है। क्यों है टर्मिनेटिंग, इसलिए टर्मिनेटिंग है, 5 आ रहा है, 5 एम आ रहा है यहाँ पर। और मैंने आपको बताया ही था कि जब आपका 2n इंटू 5m में से एक आता है या 2 आता है, ये 2 पूरा आता है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये टर्मिनेटिंग, वो नंबर हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अब सेकंड चलते हैं। सेकंड है आपका 17/8, तो यानी कि 17/2 की पावर 4, ये भी टर्मिनेटिंग है। अब मैं आपका ले लेती हूँ 6th पार्ट। ओके, तो अब हमें निकालना है, ओके, अब हमें निकालना है 3rd पार्ट, सॉरी 6th पार्ट निकालते हैं अब हम। ठीक है, आप 4th और 3rd और 4th कर लेना। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 दे रखी है। अब आपको तो यही फॉर्म दे रखी है जो आप करते हो फॉर्म, है ना। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, नाउ आप सभी को पता है, इसको देख रहे हो आप सभी को पता है ये टर्मिनेटिंग है, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों टर्मिनेटिंग है, रीज़न लिखना चैट बॉक्स में, मैं नहीं बताऊंगी। अब आप लिखोगे यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे लिख देना, नॉट चैट बॉक्स, आई एम नॉट लाइव नाउ, बट वेन एवर आई विल लाइव आई वॉन्ट द स्ट्रेंथ टू मच। ओके, 200 तक तो चाहिए ही चाहिए मुझे उसमें स्ट्रेंथ, जब मैं लाइव आऊँगी 200, इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, या मैं 100 ही बोल लेती हूँ, एक्सपेक्ट नहीं कर सकती मैं 100 से ज़्यादा। और 200 है, 200 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आप लोग के लिए तो। ओके, सो अभी ये आपका 6th है। 6 पर टर्मिनेटिंग क्यों है या आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं बता रही। अब चलते हैं 7th की तरफ।
अब ये क्या है, ये 3 दे रखे, इसमें 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, पर आप नहीं कह सकते कि ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो अब ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 2 आ रही है, इंटू 5 की पावर 7 आ रही है, फिर 7 की पावर 5 आ रही है। यहाँ पर हम इसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर ये सिर्फ 2 होते तो हम टर्मिनेटिंग कह देते, पर यहाँ पर 3 है, ये 7 भी आ रहा है, इसलिए नहीं कहेंगे हम। अगर मैंने कहा था कि अगर आपकी फॉर्म 2n इंटू 5m है तो ही होगा, इससे ज़्यादा अगर 7 दे दे नहीं होगा, तो वो नॉन टर्मिनेट जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट की तरफ। चलो 8 कर लेते हैं, 6/15। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 कट गया, 2/5 आ गया आपका। ये टर्मिनेटिंग है तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इतना इजी है, ये तो बहुत इजी है ये एक्सरसाइज तो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 तो आपने कर ही लिया है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factors of Q? आपको पता ही है P upon Q, तो आपको अब वो पूछ रहा है Q के बारे में। क्या पूछ रहा है वो, Q के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको Q के बारे में बताना है, तो Q के बारे में कैसे बताओगे अब आप Q के बारे में निकालते चलो, क्या बताना है हमें। तो सबसे पहले तो जो नंबर दे रखा है वो लिख लो। आपको पता ही है कि पहली जो है नंबर वो टर्मिनेटिंग है, दूसरा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, और फिर तीसरा नंबर टर्मिनेटिंग है। आपको पता ही, अब हमें टीचर को बताना है कि कैसे टर्मिनेटिंग कैसे नॉन टर्मिनेटिंग है, वो कैसे बताओगे वो लिखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप लिखो कि दिस नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग, यानी कि सबसे पहले आप नंबर लिख लेते हैं 4 3, फिर 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग है। सो अब नेक्स्ट लिख रहे हैं हमें, दिस नंबर this number has a terminating decimal expansion. Therefore, it is a rational number. Of the form of P upon Q, and Q is of the form 2n into 5m. Therefore, the prime factors of Q will be either 2n और, ये हाईलाइट किया मैंने, 2n और 5m और 2n इंटू 5m। अब समझाती हूँ, यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको। टर्मिनेटिंग है, ठीक है, आपको सभी को पता है टर्मिनेटिंग है। रैशनल नंबर बताई चुकी क्या होता है, ठीक है, याद कर लो। नहीं पता तो एक बार स्टार्टिंग की वीडियो पे चल जाओ, स्टार्टिंग पे चले जाओ, दोबारा देख लो, ठीक है। अब इट इज़ अ रैशनल नंबर ऑफ P अपॉन Q। आपको पता है जब रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं, यानी कि जो P अपॉन Q की फॉर्म करे, तो Q का आप बता ही सकते हो कि टर्मिनेटिंग में हमेशा आपको पता ही ये आता ही है 2n इंटू 5m, या तो 2n आएगा या तो 5m आएगा, तो ये दोनों आएगा, तो उससे आपको चल जाएगा टर्मिनेटिंग है। दूसरे नंबर चलते हैं। दूसरे नंबर क्या बोल रहा है, 0.1 2 0.1 201 2 001 2 000 1
4 zeros एंड देन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दिस नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग has a non-terminating decimal expansion, repeating decimal expansion, sorry, this number has a non-terminating repeating decimal expansion. okay गाइस, अब यहाँ पर आपने ये लिखा है ना, दिस नंबर हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे आप क्या डालोगे, बीच में आप डालोगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉर दिस नंबर हैज़ नाइदर टर्मिनेटिंग। यहाँ पे नॉर नहीं लिखोगे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा आपको, सिर्फ यहीं पे सीधा ये लिखना है नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देयरफॉर द गिवन नंबर इज irrational number. Given number is a rational number. Okay, तो this the given number is a rational number. Okay, ये ख़त्म। चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो गाइस, मैंने थर्ड पार्ट भी कर लिया है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि लिखने में टाइम जाता है और आप लोग भी कर नहीं पाते हो फिर। तो पहले मैंने लिख लिया, इसलिए अब आपको मैं समझा देती हूँ क्या करा है मैंने अब ये। ठीक है, अब ये जो आपको थर्ड दे रखा है 43.123.123456789, इसके ऊपर बार है। बार मतलब यानी कि नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि अगर आपको दे रखा है ये ऐसे 3.33333 और इसके ऊपर यानी कि 3.3 के ऊपर बार दे रखा है, ऐसे करके दे रखा है। ठीक है, तो इस बार का मतलब क्या है, 3 जो है बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसके आगे स्टॉप ही नहीं हो रहा, रिपीट हो जा रही है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सेम यहीं पे हो रहा है, बार का मतलब आपको समझ आ चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले आपने लिख दिया लाइन, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, सो नेक्स्ट इज इट इज़ रैशनल नंबर। आप सभी को पता है ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इसका क्यू निकालना है, इट इज़ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q एंड q इज़ नॉट इक्वल ऑफ द फॉर्म एंड q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m। यानी कि जो हमारा टर्मिनेटिंग में हमें पता है कि जब हमारा नंबर है वो टर्मिनेटिंग में हो तो उसकी जो क्यू फॉर्म होती है वो किस में होती है, 2n इंटू 5m में होती है। ठीक है, तो अब वो नहीं, वो ही हो गई है। ठीक है, क्यू बता दिया हमने, ये एस फॉर्म में नहीं है वो। ठीक है, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज़ नॉट फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m और 2n और 5m। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि क्या करा है मैंने क्वेश्चन के अंदर। मैं दोबारा आपको ओवरव्यू पूरा दिखा देती हूँ क्या करा है मैंने क्वेश्चन के अंदर। कोई भी डाउट होता है मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाया था, एग्जाम्पल दे दिए थे मैंने आपको कि मैं एग्जाम्पल से, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी। एक्सरसाइज 1.4 13.3125 का क्या आंसर आया था, 13/5 इज इक्वल टू टर्मिनेटिंग 17/8। सेकेंड पार्ट है 17/2 की पावर 4 यानी कि टर्मिनेटिंग क्यू है ये 2 इंटू या तो 2n होगा या तो 5m होगा या तो 2n इंटू 5m होगा। ठीक है, तो आपको ये पता हो जाएगा क्या ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इससे आपको मैंने बता ही दिया कि क्या है ये। ठीक है, अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। तो इसके लास्ट में मैं क्या दे रही हूँ आपको, होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, तो चेक वेदर द फॉलोइंग numbers are rational or irrational. It's very easy question which I am giving to you all today. Okay, so ओके, सो आपका ये फर्स्ट, मैं से 3 पार्ट दे दी, ज़्यादा नहीं दे रही। आप सोचो कि ज़्यादा दे रही, दोबारा ज़्यादा नहीं दे रही, बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, आपको क्या बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है। ओके, ये इरैशनल है, रैशनल है या इरैशनल है। ठीक है, और 4 दे देती हूँ, कभी भी डी पार्ट भी दे देती हूँ, कभी भी ऐसे नहीं देती 3 पार्ट। ठीक है, 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, सुना ही होगा, बच्चों बोलते होंगे फ्रेंड आपके। ठीक है,
सॉल्व करो, चेक द वेदर द नंबर्स फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरैशनल। ठीक है, चेक करो, आंसर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं दोबारा बोल रही हूँ, जिसका पहले आएगा मैं उसका नाम दूसरी वीडियो में अनाउंस करूँगी।